ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁର ଭୂମିରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜଳବାୟୁକୁ କଭର କରିବା। ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଳବାୟୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଜଳବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ପାଗ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ପାଗ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ପାଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଗ। କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲା, ଶୀତ ଋତୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶୀତ ଋତୁ ହେଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଶୀତ ରହିଲା, ଖରାଦିନ ସେହିପରି ରହିଛି। ତ ଖରାଦିନ, ବର୍ଷା ଦିନ, ଶୀତ ଋତୁ ଏସବୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ, ମୁଖ୍ୟ କାରକ। ତ ଜଳବାୟୁକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତ ଏଇ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ରହୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା। ତୃତୀୟ ରହିଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା। ପଞ୍ଚମ ରହିଛି ଭୂପ୍ରକୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଜଳବାୟୁ କ'ଣ? ଜଳବାୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରକ, କାରଣ କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ତ ତାର ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ଏଠି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା, ଏଠି ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭୂପ୍ରକୃତି। ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଜିନିଷ, ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି କାରକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ। ତ କେଉଁପରି ଏସବୁ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଦେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କେଉଁପରି ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? କୁହାଯାଇଛି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେତେ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି। ତ ଏସବୁର କାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କୁହାଯାଇଛି କି ଭାରତର ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କେଉଁପରି ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ବୁଝିବା।
आमर भारत मानचित्र यहाँ उत्तर पट्टर उत्तर दिगरे चित्र दि जाइए हिमालय पर्वतमाला आम जाइए भूमि रूप में अलरेडी पढ़ी सारी। तो चीन रूसिया परी केउपरी ठंडा हुए ना। सुमेरु अंचल केउपरी सुमेरु अंचल कौन, तो भारतर अवस्थिति क्यों भली यह आम डिटेल्स जाना। देखो ये हूँ आमर पृथ्वी। सुमेरु वृत्त कौन, भारतर अवस्थिति क्योंटी आम ये देखिपुर सुमेरु सुमेरु वृत्त ए एरिया हूँ सुमेरु। आमर आम कौन पढ़ी सुमेरु अंचल आसुवा अत्यधिक शीतल ये पूरा एरिया हूँ सुमेरु वृत्त। तो सुमेरु अंचल आम बुझीपारे सुमेरु 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 वृत्त ये पूरा हूँ सुमेरु अंचल। आम जो पढ़िले सुमेरु अंचल आसुवा अत्यधिक शीतल वायु एठारे शीतल वायु कहीं रोचे कहीं सूर्यंकर तिर्यक किरण तेर्छा किरण सुमेरु पड़ुची सीधा सड़क पड़ुची कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति पर्यंत। ये पूरा एरिया ग्रीष्म मंडल सूर्यंकर सीधा सड़क किरण पड़ुची सीधा किरण पड़ुची किंतु तिर्यक तेर्छा किरण पड़ुची सुमेरु जहाँफल ये जगह ठंडा रही। ठंडारू जो ठंडा वायु प्रवाहित होची ये एहीपरी कर्कट क्रांति आड़ को सुमेरु प्रभावित होची ठंडा वायु। ये सुमेरु वृत्तरु ठंडा वायु प्रवाहित होला बेले शीतल वायु प्रवाहित होला बेले कौन होची ना आम प्रथम देखीदे भारतर अवस्थिति क्यों भली अच्छी। एठी हमें देखुचे कर्कट क्रांति एठारे अच्छी विषुव रेखा ऊपर को एटा मन रखी था। नेक्स्ट देखंतु भारतर अवस्थिति ए स्थान रे भारत एठारे रही विषुव रेखा एठी रही ऊपर को एठी कर्कट क्रांति बुझीपारे। भारतर अवस्थिति एठी विषुव रेखा ऊपर को रही कर्कट क्रांति आम पूर्व पढ़ी सारी। ये हूँ सुमेरु वृत्त। सुमेरु वृत्तरु जो ठंडा वायु आसला एपरी ठंडा कहीं ठंडा वायु आसूँ आम बुझी सारी। तो ये जो ठंडा वायु आसला भारतर एठारे हिमालय पहाड़ रही। तो ये जो ठंडा वायु आसला ये ठंडा वायु को हिमालय पहाड़ मझे प्रतिबंधक साजिला जहाँफल ये ठंडा वायु भारतर भीतर को प्रवेश कर पारला ना। बुझी हो वायु प्रवाह केउपरी जलवायु को प्रभावित करुछि ना भारतर अवस्थिति एठारे रही जहाँ मध्य कर्कट क्रांति जाइछि कर्कट क्रांति जाइछि किंतु सुमेरु वृत्तर जो ठंडा पवन बाहुछि ताहा ताहा कौन करुछि ना भारत मध्य को प्रवेश कर पारना कहीं मझे हिमालय पहाड़ रही। जदि हिमालय पहाड़ न था ताले यह मध्य ठंडा था शीतल था। यही कारणरू चीन और रूसिया परी भारत रे ठंडा हुए ना। तो बुझीपारे एटी रही रूसिया एटी रही चीन यही कारणरू ठीक अच्छे पिला माने। तो बुझीगले चीन और रूसिया भली कहीं ठंडा हुए ना कहीं चीन हिमालय अपर पार्श्व रही चीन रूसिया जहाँफल से सुमेरु वृत्तर जो शीतल पवन अच्छी प्रवेश कर किंतु भारत को प्रवेश कला बेले मझे हिमालय पहाड़ जहाँ तक प्रतिबंधक सजाऊँगी। तो यही सब कारणरू कौन हो केउपरी वायु प्रवाह केउपरी भारतर अवस्थिति किपरि जलवायु को प्रभावित करुछि ताहा हमें जानि पारले। तो नेक्स्ट पॉइंट को हमें जीवा। नेक्स्ट पॉइंट देछि समुद्र पतन ठारू स्थानर उच्चता स्थान गुड़िकरे जलवायु शीतल दारिंगबाड़ी ऊटी
मसूरी ठारे शीतल जलवायु अनुभूत हुए जहाँ कि ग्रीष्म निवास कहुए। समुद्र पतन ताठारु उच्च केते उच्चरे रहिला समुद्र जो लेवल रे अछि ताठारु केते उच्चरे रहिला ता हेउची समुद्र पतन ठारु उच्चता। तो समुद्र पतन ठारु अत्यधिक उच्चरे जहाँ थिबो से जलवायु कौन थिबो ना शीतल। तो केउ केउ जगार अच्छी जेते उपरकू जीवा तो सेते शीतल ही जीवो सेति समुद्र पतन जेते उपरकू जीवा जलवायु सेठारे शीतल होइथिबो। दारिंगबाड़ी उटी मसूरी शीतल जलवायु अनुभूत हुए जहाँ को कि ग्रीष्म निवास कहुए। आम दारिंगबाड़ी उटी मसूरी जो पढ़ले से गोटे गोटे ग्रीष्म निवास कौन ग्रीष्म कहले तो ग्रीष्म दिन अर्थात खरा अधिक हुए निवास माने रहिबा। तो ग्रीष्म दिन रही भल जेहेतु सेठारे अधिक ठंडा लगे चारिआडे गरम लगुवा बेले से ठंडा लगे तो अन्य मान सेठारे पसंद करेंगे जीवाई सेठारे खरा दिने बुलियापाई जीवे रही जीवे से निवास करने जीवे। तो दारिंगबाड़ी उटी मसूरी आम देखी नवा। ये होची दारिंगबाड़ी चित्र ये होची हमर दारिंगबाड़ी चित्र जहाँ कि अच्छी ओडिशा रे ही अच्छी दारिंगबाड़ी। नेक्स्ट आम देखा उटी यह होची उटी जोटा कि हमर उटी ग्रीष्म निवास रही तमिलनाडु रे। ये होची हमर उत्तराखंड रे रही मसूरी रही उत्तराखंड रे। ये तीनोटी होची ग्रीष्म निवास मसूरी रही उत्तराखंड रे उटी रही तमिलनाडु रे। नेक्स्ट दारिंगबाड़ी रही ओडिशा रे। ये होची गोटे गोटे ग्रीष्म निवास। तृतीय रे आमे पढ़िबा नेक्स्ट पॉइंट आमे पढ़िबा वृष्टिपात। कौन पढ़िबा ना वृष्टिपात कौन मौसुमी वायु द्वारा प्रवाहित तापमात्रा कमी जाए सर्वाधिक वृष्टिपात माइसिनराम रे हुए कम वृष्टिपात केउठारे हुए ना थर मरुभूमि हुए। तो जितेबाला वृष्टिपात हम मौसुमी वायु आसिले कौन हम मौसुमी वायु आसिले वृष्टिपात हम वृष्टिपात हेले से जगार तापमात्रा कमिजिव। तो सर्वाधिक वृष्टिपात पूरा भारत में केउठारे हुए ना माइसिनराम रे हुए माइसिनराम रे केउ राज्य रे रही ना मेघालय रे रही माइसिनराम। कम वृष्टिपात आमर हुए थर मरुभूमि जोटा कि आमर राजस्थान रे रही। तो वृष्टिपात क्यों भली जलवायु को प्रभावित करुच्ची ना वर्षा हवा फल कौन हो तापमात्रा कमी जाऊँगी से जगह ठंडा लगुच। तो यही भाव से जो जलवायु को सेठारे कौन कर दूची वर्षा पाग हो जाऊँगी से टाइम रे जलवायु परिवर्तन होची। नेक्स्ट आम पढ़ा समुद्र ठारो स्थानर दूरता। पूर्वर आम पढ़ी समुद्र ठारो स्थानर उच्चता जेते उच्च को जीवा सेते ठंडा जहाँकि आम उटी मसूरी दारिंगबाड़ी विषय पढ़ी किंतु समुद्र ठारू स्थानर दूरता कहले केते दूर रे अछि। जेमिति आम देखा उपकूलवर्ती अंचल अत्यधिक शीत बा गरम होनी कहीं समुद्र आसुथिबा शीतल वायु उष्णता को कमे दिए। दूर रे जो अंचल रही सेठारे समुद्र प्रभाव पड़ेनी सेठारे अत्यधिक गरम हुए। आम कौन जानले उपकूलवर्ती अंचल रे जोटा समुद्र उपकूल सेठारे समुद्र रू जो पवन प्रवाहित हम सेठारे जो स्थल भाग रे जो उष्ण वायु थिबो ताको कौन करिवो ना शीतल वायु आसीबा द्वारा आखपाख परिवेश ठंडा हो। तो उपकूलवर्ती अंचल रे समुद्र प्रभाव कारण सेठारे अधिक ठंडा बा गरम हुए नहीं किंतु जो गुड़ाक दूर रही सेठारे समुद्र प्रभाव पड़ पारिबनी जहाँद्वारा सेठारे अत्यधिक गरम हम। आम जदि ओडिशार देखिबा केउ केउ जिले में अत्यधिक गरम हबार संभावना रही अर्थात जो समुद्र प्रभाव कम रहिबो। तो केउ केउ जगह संबलपुर बलांगीर राउरकेला। जदि आम भारत वर्ष को देखिबा केउ केउ जगह दिल्ली हरियाणा राजस्थान। तो ये सबू केउठारे अवस्थित आम देखीदबा
आमे पढ़िथिले ओडिशार केउं केउं जगह समुद्रर प्रभाव कम पड़े। राउरकेला जहाँ सुंदरगढ़ रे, संबलपुर, बलांगीर तो समुद्र ये सब एरिया रे रही। ये हूँ समुद्र एरिया। समुद्र ठू दूर रे अच्छी ये सब एरिया तो एठारे समुद्रर प्रभाव कम। तेणु एठारे कौन हम ना अत्यधिक गरम होबार संभावना रही। आउ कौन आम पढ़ी देखो ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये कौन रही। एठी रही समुद्र, एपटे रही समुद्र, किंतु राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये कौन रही ना समुद्र ठू दूर रही, जोटारे कि अत्यधिक गरम होबार संभावना रही। कहीं एठारे समुद्रर प्रभाव कम, कहीं समुद्र ठू दूर अवस्थित। तेणु समुद्र पाखरे जो गुड़िक अवस्थित ओडिशा अच्छी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ए सबु अंचल रे अत्यधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हेबनी, कहीं समुद्र ठारू पाखरे अच्छी समुद्रर प्रभाव रही। किंतु राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ए सब जगह रे समुद्र ठारू दूर रही, जहाँफल एठारे अत्यधिक गरम होबार संभावना रही। नेक्स्ट देछि सूर्य जोगु जलवायु रे पार्थक्य। भारत एक ग्रीष्म प्रधान देश तो सूर्य जोगु जलवायु रे पार्थक्य, सूर्य जोगु जलवायु मध्य पार्थक्य देखा जाए। ये सब कारण को छाड़देले वायु प्रवाह, समुद्र पतन ठारू स्थानर उच्चता, वृष्टिपात, समुद्र ठारू स्थानर दूरता, भूप्रकृति ये सब को छाड़देले अन्य एक मुख्य कारण होछि सूर्य। कहीं सूर्य मध्य आम बुझी नबा केउपरि सूर्य जलवायु रे पार्थक्यर मुख्य कारण एवं भारत कहीं एक ग्रीष्म प्रधान देश कह जाउछि। भारत आम पूर्वर भारतर अवस्थिति विषय रे पढ़ी। एठी रही विषुववृत्त, एठी रही कर्कट क्रांति, एठी रही मकर क्रांति। भारत एपरी जाइछि, भारतर मझी भाग कर्कट क्रांति दे क्रॉस करिछि। तो सूर्यंकर आम जानिचे कर्कट क्रांति ठू मकर क्रांति, सूर्यंकर सीधा सड़क किरण एठारे रही थाए। सीधा सड़क किरण एठारे थिबारु ए अंचल को ग्रीष्म मंडल कह जाए। जेहेतु ग्रीष्म मंडल भितर कर्कट क्रांति देकरी भारत जाइछि, तेणु ए एरिया रे कौन होछि ना सूर्यंकर सीधा सड़क किरण पड़ुछि, जहाँफल ग्रीष्म ऋतु खरा अधिक मात्रा रे होछि। तो खरा अधिक मात्रा रे हेबा कारणरु एक ग्रीष्म प्रधान देश बोली कह जाउछि। तो आमे ए चैप्टर रे पढ़िले। आजिर क्लास रे आमे जलवायु विषय जानिले, जलवायु मुख्य कारक कौन जानिले। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे यार एक्सरसाइज को डिटेल्स आमे जानिबा।